Hello, good evening. Welcome on the platform of Royal Classes. So students, today's topic is real numbers. We are going to study introduction, proving irrationality of numbers, concept of termination and non-terminating number, and about HCF and LCM of numbers. First of all, real numbers. Real numbers are of two types, that is rational and irrational. Further, rational can be divided into fractions and integers can be divided into negative integers and whole numbers. Whole numbers is 0 and natural number. So, what is real? It is a set of numbers consisting all these numbers. All these numbers are grouped under real numbers. To understand the real numbers, we have to understand those type of number. For example, rational number, irrational number, fractions, etc., etc. Rational number, the number which can be expressed in form of P by Q and Q not equal to 0 are called rational numbers. It is denoted by letter Q. The rational number is denoted by letter P, and these numbers cannot be expressed in the form P by Q. And also, the decimal expansion cannot be terminated. Their decimal expansion can't be terminated. Means the remainder cannot be 0. And they are not and with repeating sequence. They are not and with repeating sequence. For example, 2 by 3 is example of rational number. Also, 2 is also example of rational number because its denominator can be 1. Okay. The example of rational number is 1.101001000 dash dash dash. These are non-terminating and also these are not repeated. As you know, fraction is a part of number. For example, the 4 by 5. It is a part of whole number.
Integers are denoted by letter Z. It consists all negative numbers, 0, and all positive numbers, but it excludes fractions. It does not include fractions. Okay, for example, minus n to n. All numbers are started from 0. 0 to all positive integers. It is denoted by letter W. And natural number is started from letter 1, and it includes again all the positive integers. Now, how can we prove irrationality of a number? This question comes almost every year in the board exam. Prove that dash is an irrational number. You can prove root 5, root 7, or any number like that. So the process is as follows. This question is proved by method of contradiction. Means we suppose something and prove ourselves as wrong. Let root 2 is equal to a by b, where a and b are co-prime. Means they have HCF as 1, no other common factor. Now squaring both sides. Cross multiply 8. 2 is a factor of a square. 2 is a factor of a square. If 2 is factor of a square, then 2 will also be factor of a. This is very important. If a number is a factor of a square, then the number is also factor of that number. For example, if 2 is factor of 2, then 2 is also factor of 2 square, that is 4. Simple. Now, let a is equal to 2c. You can assume any constant, but the main thing is 2, because we have proved 2. If you have proved root 3, then take it as 3. Again squaring both sides, 4c square. Now, what is a square? 2b square. 2b square. From equation 1. You can cancel this term. B square
is equal to 2c square. It means 2 is a factor of b square. So 2 will also a factor of b. We assume that a and b are co-prime, but here we get 2 as a common factor. So our assumption is totally wrong. From first and second, 2 is a factor of A and B, but this contradicts our assumption. Hence, root 2 is an irrational number. Okay, after this, you do this. That's all. Any doubt? हाँ, ए और बी मानने का मतलब यही है ना, हमने रूट 2 को पहले रेशनल माना है. ए अपॉन बी में मानने का मतलब क्या है कि हमने रूट 2 को पहले रेशनल माना है. ठीक है ना? अभी जब हमने डेफिनेशन की थी तो हमने ये तो किया था कि जो p अपॉन q की फॉर्म में आ जाए और q 0 नहीं होना चाहिए, वो रेशनल होता है. हमने यहाँ पर a अपॉन b की फॉर्म में माना है. ओके, दैट्स नाइस. अब जो आप प्रैक्टिस करेंगे रूट 3 और रूट 7 की. ओके, आप इन दो नंबरों की प्रैक्टिस करेंगे. बच्चों कई बार क्वेश्चन आपका इस तरह से भी आता है, प्रूव दैट 5 प्लस रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर. प्रूव दैट 5 माइनस रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर. प्रूव दैट 5 रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर. Prove that 5 upon root 2 is an irrational number. इसके लिए आपको क्या करना है, आपको अगेन रूट 2 को ही प्रूव करना है और फिर एक लाइन लिख देनी है, the sum of a rational and irrational number is irrational. ओके, अगर आप किसी रेशनल और इरेशनल नंबर को प्लस करेंगे तो इरेशनल ही आएगा. इसके लिए भी आप रूट 2 को वैसे ही प्रूव कर देना जैसे हमने पहले अभी सीखा था और लिख देना द डिफरेंस ऑफ a rational and irrational number is irrational. Again, the product of a rational
and irrational number is irrational. तो आप सम करो, डिफरेंस करो या मल्टीप्लाई करो, एक रेशनल और इरेशनल नंबर को आपका इरेशनल नंबर ही आना है। लेकिन प्रोडक्ट में एक कंडीशन और है, क्या? एक्सेप्ट व्हेन रेशनल पार्ट इज 0। रेशनल पार्ट को 0 नहीं होना है। मीन्स ये 5 को 0 नहीं होना है। अगर ये 0 हो गया और 0 को √2 से कराया तो वो 0 हो जाएगा एंड 0 इज ए रेशनल नंबर। समझे? तो 0 के अलावा अगर कोई और रेशनल नंबर हो, 0 के अलावा कोई और रेशनल नंबर हो और उसको किसी इरेशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई कराया जाए तो वो इरेशनल आता है। सिमिलरली the when a rational number is divided by irrational number, the result is irrational। जब हम किसी रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से डिवाइड कराएंगे तो उसका रिजल्ट भी इरेशनल होगा। फिर से कंडीशन वही है, एक्सेप्ट रेशनल पार्ट इज 0। मतलब कब एक्सेप्शन क्या है कि रेशनल पार्ट 0 ना हो। ठीक है, देखिए ना, अगर 0 को √2 से करा दिया तो आपका 0 आ जाएगा। 0 रेशनल नंबर है। तो अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप √2 को सिंपली कीजिए और फिर एंड में एक लाइन लिख देना, बस हो गया काम। Now, without actual division, how to find an irrational number have terminating decimal expansion or a non-terminating repeating decimal expansion? But terminate means जिसका रिमाइंडर 0 आ जाए, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जिसका 0 ना आए और वो रिपीट होता चला जाए। ठीक है, बच्चे अगर आपसे पूछ ले तो आप बिना डिवाइड करे भी उसको देख सकते हो कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, कैसे? आपको करना क्या है, अगर आपका डेनोमिनेटर, क्या डेनोमिनेटर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में आना चाहिए। अगर इस फॉर्म में आ गया, if you get this form of denominator, then the decimal expansion is terminating. Otherwise, your decimal expansion will be non-terminating. For example, I have to take the denominator, and when I make factor of it, I get 2 into 2 into 2. That means 2 into 3 and 5 into 0.
because I have no 5, I can write 5 raised to the power 0 because it is 1. So I get my answer in 2 raised to the power n into 5 raised to the power n. So it is terminating. If I get my answer in the form of 2 raised to the power n into 5 raised to the power n, then my rational number is terminating. Further, अगर मुझे ये देखना है कि मेरा रेशनल नंबर कितने प्लेसेस के बाद टर्मिनेट होगा, तो बच्चों ये देख लेना कि m और n में से कौन बड़ा है। ठीक है, जो भी बड़ा होगा उतने प्लेसेस के बाद वो रेशनल नंबर टर्मिनेट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर आपको पता चल रहा है कि 3 बड़ा है, तो 23/8 is terminate after 23/8 is terminate after 3 places of decimal. But you have checked larger of m or n, larger of m or n. जो बड़ा होगा उतने प्लेसेस के बाद आपका डेसिमल टर्मिनेट हो जाएगा। जैसे चेक करके देखते हैं, हम चेक कर लेते हैं एक बार। 23 and 8, 8 to the 16 point, 8 the 64, 6, 8 7 the 56 and 8 5 the 40। देखिए 3 प्लेसेस के बाद आपका रिमाइंडर 0 आ गया। क्लियर? इस तरह से हम ये भी बता सकते हैं कि हमारा जो रेशनल नंबर है वो डेसिमल के कितने प्लेसेस के बाद टर्मिनेट होगा। क्लियर होती है बात? एनी डाउट? ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, इसी टॉपिक पर कुछ और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल 125/441, but we have to take 441, 3 into 3 into 7 into 7, बच्चों ये 2 की पावर 2 raised to the power 5 into 5 raised to the power n की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं हो रहा, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है ये। अगेन आपको क्वेश्चन इस फॉर्म में भी आ सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। जैसे अब देखो इसमें तो सीधा पता ही चल रहा है कि आपका डेनोमिनेटर 2 raised to the power m into 5 raised to the power n की फॉर्म में है, तो इट इज टर्मिनेटिंग। बच्चों बताओ कितने प्लेसेस के बाद ये टर्मिनेट होगा? पावर कौन सी बड़ी है? वेरी गुड, it terminates after 3 places of decimal. Why? Because power of 2 is greater than power of 5. Greater power is 3. बच्चों आप सभी को एचसीएफ और एलसीएम निकालना आता होगा। एचसीएफ मींस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड एलसीएम मींस लोएस्ट कॉमन फैक्टर। बचपन से आप निकाल रहे हो, लेकिन क्या कभी सोचा है एचसीएफ क्या है और एलसीएम क्या है? जरा देखो, the HCF of 2 or more positive integer is the largest positive integer that divides each given positive numbers completely. HCF जो होता है
दो या दो से ज्यादा पॉजिटिव नंबर का उनमें से हर नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर देता है। और जो एलसीएम होता है ना, वो जो जिस भी नंबर का आप एलसीएम निकाल रहे हो वो उनका मल्टीपल होता है। जरा हम बात करेंगे एचसीएफ की। मानो हमें 4 और 6 का एचसीएफ निकालना है। 2 into 2 and it is 2 into 3. This is common. तो एचसीएफ कितना होगा? 2 होगा। अब 4 2 से भी डिविजिबल है, 6 भी डिविजिबल है 2 से। तो दिस इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जब हम डिविजिबिलिटी की बात करते हैं तो एचसीएफ निकालते हैं। एलसीएम में हमें क्या करना होता है जरा देखिए। अगेन हम सेम एग्जांपल लेंगे 4 and 6। एलसीएम जो कॉमन है उसको तो आप ले लो एक बार, और अदर्स जो बच गए उनको भी ले लो। 4 से 12। अब देखिए 4 की टेबल में 12 आता है, 6 की टेबल में 12 आता है, तो ये क्या है? मल्टीपल है इनका। ये इनका फैक्टर था, ये इनका मल्टीपल है। तो जब हमें मल्टीपल की बात करनी हो तो हमें एलसीएम लेना है, जब हमें डिविजिबल की बात करनी हो तो हमें एचसीएफ लेना है। इतनी बात आपको याद रखनी है, ठीक है? ये क्वेश्चन में एप्लीकेशन ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तब बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं कि हम एचसीएफ निकालें कि एलसीएम निकालें। तो जरा ये सोच लेना कि हमें डिविजिबल निकालना है या मल्टीपल निकालना है। अगर हमें डिविजिबल निकालना है तो एचसीएफ, मल्टीपल निकालना है तो एलसीएम। दैट्स ऑल बच्चों। वैसे तो एचसीएफ निकालने के बहुत सारे मेथड हैं। यहाँ पर आपको एक मेथड है यूक्लिड डिवीजन लेमा। ये क्या कहता है कि लेट a and b be any two positive integer, then there exists unique integer q and r such that a is equal to bq plus r। बच्चों बचपन में आपने एक बात पढ़ी होगी, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। बच्चे सिंबॉलिकली ए आपके डिविडेंड को डिनोट कर रहा है, बी आपके डिवाइजर को, क्यू इज क्वोशिएंट एंड आर इज रिमाइंडर। अब देखिए जो आपका रिमाइंडर है वो या तो 0 के बराबर होगा या 0 से छोटा होगा, लेकिन आपके डिवाइजर से छोटा होगा क्या? रिमाइंडर। ठीक है, तो रिमाइंडर या तो आपका 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा। अगर एग्जैक्टली डिविजिबल हो गए तो 0 के बराबर होगा, लेकिन वो डिवाइजर से छोटा होगा। देखिए बच्चों, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से हम कैसे एचसीएफ निकाल सकते हैं। $867 को पहले आपको ले लेना है और 255 से इसको डिवाइड कराना। आई थिंक 3 से हो जाएगा, रिमाइंडर आपका बचना है 102। बच्चों आप ऐसे भी कर सकते हो, साइड में आप कर सकते हो उसको सोल्व। 867 255, अगर 255 को 3 से कराया जाएगा बच्चों, ये प्रोसेस आपको तब तक रिपीट करना है जब तक कि आपका रिमाइंडर 0 ना आ जाए। ओके, तो अब आप क्या करो, 255 को ले लेना। ठीक है, 102 था रिमाइंडर, अब ये क्या बन जाएगा आपका? डिवाइजर। 102 2 था,
और रिमाइंडर आपके पास आएगा 51. 51 is remainder. Again 102. Now this becomes our divisor. 51 to the plus 0. 0 plus 0. 0 आ गया. HCF is 51. If there are two positive integers x and y, then LCM of x and y into HCF of x and y is equal to product of two numbers. In this type of questions, we have the four terms. For example, LCM, HCF, x and y. In the question, we have given three terms and we have to find the fourth one. Okay. For example, here's a question. In this question, we have given HCF 306. HCF of in this question, we have given two numbers, that is 306 and 657, and their HCF is 9. We have to find out LCM. So, by formula, we know HCF into LCM is equal to x into y. X and y are our two numbers, okay? So HCF is 9. We have to calculate LCM 306 and 657. Simply calculate it. Divided by 9. 9 7 da and 9 3 da. If we multiply it 18, it becomes 2 2 3 3 8. 2 2 3 3 8. Yes. Okay. In this way, we can also find HCF, X or Y. We have given, there are four terms and that one term is missing. We have to find out fourth one, like that. Clear? Now there is a formula of two numbers, that is X and Y. What happens if we have three numbers? Okay. Then the formula is for any three positive integers x, y, z. LCM of x, y, z is equal to x, y, z into में HCF of x, y, z. Then upon HCF of xy into HCF of yz and HCF of zx. If we have to find HCF of three numbers, the formula is XYZ LCM of X, Y,
Z upon LCM of XY LCM of YZ and LCM of ZX. Okay, for 3 numbers you have the this and this formula. For LCM it is, and for HCF it is. And there is also a formula for fraction. For example, you have to find LCM of P by Q into R by S. Then the formula is LCM PR upon SCF of Q by S. And if you want to calculate SCF, then the formula is SCF PR SCF of PR upon LCM of QS. देखो बच्चों, जो चीज हमें निकालनी हो उसको ऊपर रख देना, ऊपर वाली टर्म्स को ऊपर ही रखना, ठीक है। इसमें हमें एलसीएम निकालना था तो हमने एलसीएम को ऊपर रखा और पीआर को ऊपर रखा, एचसीएफ नीचे आ गया। इसमें हमें एचसीएफ निकालना था तो एचसीएफ को ऊपर रखा, पीआर को ऊपर ही है और एलसीएम नीचे आ गया। सिंपल है, याद करने की भी इतनी जरूरत नहीं है, सिंपल है याद करना भी, ठीक है। तो अगर आप ये फॉर्मूला का यूज करोगे तो आप आराम से 3 नंबर्स का भी एलसीएम, एचसीएफ या फ्रैक्शन का भी एलसीएम और एचसीएफ आराम से निकाल पाओगे। ओके, नोट इट डाउन। बच्चों अभी हम कुछ एप्लीकेशन देखते हैं एचसीएफ और एलसीएम पर बेस्ड। कैसे आपको पता चलेगा कि एचसीएफ की प्रॉब्लम है, या कैसे आपको पता चलेगा कि ये प्रॉब्लम एलसीएम को लेकर सोल्व होनी है। बच्चों मैंने आपको पहले बताया था कि अगर किसी क्वेश्चन में डिविजिबिलिटी बोले तो एचसीएफ निकालना है, और अगर मल्टीपल पूछे तो आपको एलसीएम निकालना है। ओके, तो अगर आपको डिविजिबिलिटी पूछा जाए तो एचसीएफ, और अगर आपको मल्टीपल पूछा जाए तब एलसीएम। ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको पता लगेगा कि इसमें हमसे डिविजन्स करने को बोला है या मल्टीपल करने को बोला है। तो बच्चों क्वेश्चन है नेक्स्ट, ऑन ए मॉर्निंग वॉक 3 पर्सन स्टेप अप टुगेदर। एक मॉर्निंग वॉक करते हुए 3 पर्सन एक साथ कदम आगे रखते हैं, और पहले जो पर्सन की कदम की डिस्टेंस है वो 40 सेंटीमीटर है, मतलब वो अपने एक स्टेप में 40 सेंटीमीटर की दूरी तय करता है। इसी तरह से जो दूसरा पर्सन है वो 42 सेंटीमीटर की दूरी तय करता है, और जो तीसरा बंदा है वो 45 सेंटीमीटर की दूरी तय करता है अपने एक स्टेप में। तो आप मिनिमम डिस्टेंस बताइए कि कंप्लीट स्टेप्स में वो सेम डिस्टेंस को पूरा कर सके। तो आपको देखो निकालना क्या है, मल्टीपल ऑफ स्टेप्स। मल्टीपल ऑफ स्टेप्स निकालने की बात यहाँ पर हो रही है कि वो एक कदम चले, कितनी दूरी तय की, सेकंड में, थर्ड में, तो उनका एक हर मतलब कॉमन मल्टीपल कहाँ आएगा, कॉमन मल्टीपल कहाँ आएगा 40, 42 और 45 का, वही तो उनकी सेम डिस्टेंस होगी। तो यहाँ पर बात किसकी हो रही है, मल्टीपल की बात हो रही है। अब जब मल्टीपल की बात हो रही है तो आपको क्या निकालना है बताओ? वेरी गुड, हमें निकालना होगा इसमें एलसीएम। तो देखिए पहले 40 के फैक्टर्स बनाएंगे, 2 into 4
4 to the 8, 5 the 40, 42 के बनाओ, 2 3 the 6, 6 7 the 42, 45 के बनाओ, 3 5 the 15, sorry 3 into 3 into 5. ओके बच्चों, आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हो जैसे आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी आप इसको निकाल सकते हो। 40 के फैक्टर जैसे हम निकालते हैं 20 10 5, देखो 2 into 2 into 2 and 5। ओके एलसीएम जो कॉमन है उनको तो एक बार लिख देंगे। ये कॉमन है तो 2, ये 2 बचे रह गए, इसमें ये कॉमन आ रहा है 3, लेकिन एक 3 बच गया, फिर 5 and 7, 2 to the 4 to the 8, 8 9 the 72, 72 को अब आप किससे कर लें 5 से, 360, 360 को आप 7 से कर लो, is 2520 सेंटीमीटर। तो बच्चे जब वो 2520 सेंटीमीटर की दूरी तय कर चुके होंगे तब उनके कंप्लीट स्टेप पड़े होंगे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 sets of English, Hindi and Mathematics book have to be stacked in such a way that all the books are stored topic wise। 3 सेट है इंग्लिश, हिंदी और मैथमेटिक्स की बुक के, आपको इस तरह से उनके स्टैक मतलब गड्डियां बनानी है कि ऑल द बुक्स आर स्टोर टॉपिक वाइज, सभी बुक टॉपिक वाइज आप स्टोर कर सको, और हर जो स्टैक की ऊंचाई है ना वो सेम रहनी चाहिए। ठीक है, जो भी आप स्टैक बनाएंगे उनकी जो ऊंचाई है वो सेम रहनी चाहिए। पहले तो आपको क्या बताना है, नंबर ऑफ स्टैक्स। पहले तो आपको क्या बताना है इसमें, नंबर ऑफ स्टैक्स की कितनी गड्डियां बनेंगी, किसकी, इंग्लिश की, हिंदी की और मैथमेटिक्स बुक की। ये एज्यूम करना कि बुक्स की जो मोटाई है वो सेम है। पहले आपको निकालना क्या पड़ेगा कि हर स्टैक्स में कितनी बुक आ जाएंगी, हर स्टैक में कितनी बुक आ जाएंगी। तो अब हमें क्या करना है, जो आपको बुक्स दी गई है उनको बांटना है, यानी कि डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन है ये। जो भी आपको बुक दी गई है उनको बांटना है, किसमें बांटना है, स्टैक्स में बांटना है। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन है तो आपको एचसीएफ निकालना है। तो जरा देखिए, एचसीएफ निकालते हैं हम। तो पहले हम एचसीएफ निकालते हैं 96, 2 into 2 into 2, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 16, 5 the 90, sorry, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 16 to the 32, 32 into 3 is 96। 96 के फैक्टर क्या बनेंगे, 2 into 2 into 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 16 to the 32, 32 to the 96। सिमिलरली आप बनाइए अब 240 के फैक्टर्स, 240 के फैक्टर्स, 2 to the 4 to the 8 to the 16 to the 48, 48 into 5। ओके, अब आप बना लीजिए 336 के फैक्टर्स, 2 into
2 to the 4 to the 8 to the 16, 16 to the 48, 8 7 the ओके। एचसीएफ निकालिए, कॉमन क्या है इसका? 2 2 2 एंड 2, तो 2 की पावर 4 एंड 3 भी कॉमन है, तो इनटू 3, तो 2 की पावर 4 16 to the 48। तो नंबर ऑफ बुक्स इन वन स्टैक इज इक्वल टू 48। तो एक स्टैक में आपकी 48 बुक्स आएंगी। अब हमें ये भी पूछा गया है कि हर बुक के कितने स्टैक बनेंगे। तो देखिए, नंबर ऑफ स्टैक ऑफ इंग्लिश बुक, देखिए इंग्लिश बुक 96 अपॉन में 48, 2 स्टैक्स बनेंगे। इसी तरह से नंबर ऑफ स्टैक्स ऑफ हिंदी बुक्स, व्हाट अबाउट हिंदी बुक्स? these are 240 5 तो आपके 5 स्टैक्स बन जाएंगे। नंबर ऑफ स्टैक्स ऑफ मैथमेटिक्स बुक्स, तो ये आपके पास 336 है, इसको भी डिवाइड करा दीजिए 248 से, तो ये आ जाएगा आपके पास 7 स्टैक्स। ठीक है जी। अगर सिर्फ स्टैक तक पूछा होता कि कितने स्टैक बनेंगे, मतलब एक स्टैक में कितनी बुक्स आएंगी, अगर ये पूछा होता तो 48 आएंगी। कितने स्टैक बनेंगे हर बुक के, तो आप डिवाइड कर दीजिए। बच्चों, ऐसा क्वेश्चन वुडन प्लैंक पे भी आता है कि आपको दे देते हैं कि एक वुड का टुकड़ा है, वो उसके कितने पार्ट में आपको बांटना है, तो डिवाइड करना है। तो अगेन आपको ऐसा निकालना पड़ेगा कितने प्लैंक बनेंगे, कितने लेंथ के, तो उसके लिए आपको डिवाइड करके निकालना है। एनी डाउट? तो बच्चों, आपने देखा इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमें मल्टीपल्स निकालने थे, तो हमने एलसीएम किया। इस क्वेश्चन में हमें डिवाइड करनी थी बुक्स को, स्टैक्स के अंदर डिवाइड करनी थी, तो हमने एचसीएफ निकाला। एनी डाउट बच्चों? क्लियर? वेरी गुड। इस क्वेश्चन को पढ़िए और मुझे बताइए कि आपको एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ निकालना है। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, 6 bells commence tolling together, 6 बेल हैं एक साथ बजना शुरू करती हैं। At intervals of 2, 4, 6, 8, 10 and 12 minutes, एक बेल 2 मिनट बाद बजती है, हर 2 मिनट, फिर 4 मिनट्स के बाद, फिर 6 मिनट बाद एंड सो ऑन। बताइए 30 आवर्स में वो कितनी बार इकट्ठी बजेगी? तो हमें क्या निकालना है इसमें बताओ? वेरी गुड, मल्टीपल्स निकालने हैं। एंड मल्टीपल्स निकालने हैं तो हमें क्या निकालना होगा? एलसीएम निकालना होगा। तो देखिए
4 का, 2 into 2, 6 का, 2 into 3, 8 का, 2 into 2, then 10, 2 into 5, and then 12. Two into 3. Now we have to find LCM. First take the commons. 2, 2, and this 2. Then 3 and 5. 2 to the 4 to the 8, 24, 5 the 120 minutes. 120 minutes is equal to 2 hours. तो कितनी बार बेल एक साथ बजेगी 30 आवर्स में? तो आपको करना क्या है, 30/2 करना, 15 टाइम्स। लेकिन बच्चों जरा देखो, वहां पर एक वर्ड है कमेंस। कमेंस का मतलब क्या होता है कि शुरुआत में भी वो बजोगी, इन बिटवीन आपकी आ गई 15 टाइम्स, 30 आवर्स में वो क्या बजी होगी, 15 टाइम्स टोल की होगी। लेकिन यहाँ पर एक वर्ड आ गया कमेंस, की शुरुआत ही उन्होंने एक साथ बजकर की है। तो 15 + 1 = 16 टाइम्स इसका आंसर होगा। ये बच्चे बहुत गलतियां करते हैं, ठीक है। 15 टाइम्स इसका आंसर निकाल के आते हैं, मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन आने के पूरे चांस हैं। तो 15 टाइम्स आंसर नहीं होगा, इट्स 16 टाइम्स, क्योंकि यहाँ पर एक वर्ड आ गया है कमेंस। कमेंस का मतलब क्या है कि शुरुआत में ही वो एक साथ बजी थी और इन बिटवीन 15 टाइम्स और बजी हैं। इस वर्ड की वजह से इसके अंदर में +1 भी करना पड़ेगा। क्लियर?